Hello and very good morning to all of you. Well, I welcome my viewers on YouTube and, of course, my students, 11 elective English students. Uh, uh, you know, uh, the viewers on YouTube, you're all familiar by now with me, an English teacher from AMU called Akhlaq Ahmed. Now, uh, in today's video, we'll take up hawk roosting. This is a poem prescribed for CBSE elective English. Now, this is poem number 7. Today we will try to cover the theme, the difficult words, and a thorough introduction to the poem. So first, I'll dictate you the theme of the poem. Please note it down. Yes, here we go. Please write. Thematically, the poem is an indirect criticism of human behavior and human actions. Full stop. The motive of this poem is not so much to well, yes, I repeat, the motive of this poem is not so much to praise the hawk, as to denigrate the man, DENIGRATE, denigrate the man, full stop. The hawk is depicted in this poem
The hawk is depicted in this poem as being being vastly superior to man, full stop. The bird does not have devitalizing, devitalizing, devitalizing intellectuality of man, full stop. Intellectuality of man, full stop. The hawk says, comma, inverted comma start, I kill where I please. Where I please. Commas closed. Full stop. This statement establishes a sharp contrast between the functional animal and the reflective man, full stop. Next paragraph. However, comma, the hawk is not depicted as an embodiment of brutality. Full stop. It kills without malice, that is M-A-L-I-C-E, malice, in order to survive.
survive. Full stop. As a matter of fact, comma, the poet draws a parallel between the predatory, I'll spell the word predatory. Predatory means carnivorous. So predatory instincts of the hawk and human behavior full stop. This parallel is evident in the following statement made by the hawk. अब इस पे सेमीकोलन लगा दीजिए और पोइट्री की हमारी पोएम से 2 लाइन है जो हम यहाँ कोट कर रहे हैं, वो लिखिए. फर्स्ट लाइन, देयर इज नो sophistry, sophistry, sophistry in my body. Next line, my manners are tearing of heads. Tearing, T-E-A-R-I-N-G, tearing of O-F-F, of heads, H-E-A-D-S, heads. Full stop. Now from the next line, this statement indirectly conveys the idea that there is अब ये वर्ड आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, sophistry, sophistry, कॉमा बंद कर दीजिएगा. In human body
as well as in human behavior. Full stop. In this respect, comma, the poet seems to suggest that man very often behaves brutally. Full stop. But, comma, his brutal and cruel behavior remains unnoticed because of his seemingly harmless body and physical refinements, 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 full stop. Thus, comma, the human claim of being civilized is, comma, in fact, comma, based on, अब ये फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, sophistry, commas closed, full stop. Next paragraph. It is worth mentioning, comma, comma, that some critics believe that the hawk symbolizes Hitler
or any other dictator like him, like him, full stop. But, comma, Ted Hughes, 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 Ted Hughes, this is the name of the poet, has himself rejected this view. According to him, comma, हॉक रूस्टिंग, अब ये दोनों वर्ड कैपिटल से लिखिएगा, ये पोएम का नाम लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कैपिटल एच और कैपिटल आर. हॉक रूस्टिंग has nothing to do with the theme of violence. With the theme of violence. Full stop. In his opinion, comma, the hawk is a representative of nature as a whole. Full stop. WHOLE, whole. Full stop. It is for this reason that hawk roosting, ये फिर से कैपिटल में लिखना होगा, कैपिटल एच और कैपिटल आर. hawk roosting should be treated as the depiction of nature talking to herself. Full stop. Now the difficult words. The theme is over. Please note down some of the difficult words. The first one is wood. WOOD. देखिए वुड का एक मीनिंग होता है, ये नोट कर लीजिए, an area of land smaller than a forest that is covered
with growing trees, with growing trees. Now, in the poem, there is the expression, I sit on top of the wood. तो top of the wood से मतलब है, um, you know, the tallest tree, the top of the tallest tree in the wood. The top of the tallest tree in the wood. एक small forest आप कह सकते हैं इसे. फॉरेस्ट से छोटा होता है लेकिन ग्रीनरी होती है, वहाँ पे पेड़ होते हैं. तो जो सबसे ऊंचा पेड़ है वहाँ पे, उसके टॉप पे वो बैठा हुआ है. द टॉप ऑफ द टॉलेस्ट ट्री इन द वुड. नेक्स्ट वर्ड इज फॉल्सिफाई. Falsify means mislead. Mislead, to prove to be false. Hooked, to prove to be false. Next word is hooked. 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 Hooked means bent. BENT, bent, मुड़े हुए. The next word is eat. Perfect kills and eats. Eats here means food. Food. The next word is buoyancy. BUOYANCY, buoyancy. This means the ability or tendency to float in water, to float in water or air or some other fluid. Fluid, FLUID, fluid. I repeat, the ability or tendency to float in water or in air or some other fluid. यानी एक वर्ड में इसे कहें तो कह सकते हैं फ्लोटेबिलिटी. फ्लोट एबिलिटी एक में लिख दीजिए, FLOATABILITY, फ्लोटेबिलिटी. ये माने होते हैं buoyancy के. Then there is the word assert. ASSERT, assert. This is both verb transitive and intransitive, and it means to state positively, to state positively, or to affirm. AFFIRM, affirm. यानी मजबूती से अपनी बात को कहना, प्रूव करना. Then we have the word roosting. देखिए, roost means
birds perching place. Birds perching place यानी परिंदों का जो बसेरा होता है, ये जिसको अड्डा बोलते हैं. And as a verb it means to sit or rest on a roost. To sit or rest on a roost. यानी कि roost means, roosting means resting. अच्छा, अब यहाँ पे हॉक के माने भी लिख लीजिए. What kind of a bird is hawk? Just a minute. You see, wait a while. Yes, hawk. In fact, I was looking for the word. Hawk is a bird of prey. Is a bird of prey, P-R-A-Y, prey, with rounded wings. With rounded wings, shorter than falcons, F-A-L-C-O-N'(S). Falcons यानी एक तरह का शिकारी परिंदा होता है जिसके गोल पंख होते हैं, लेकिन इसके पंख फॉल्कन के पंख से छोटे होते हैं. तो you know, ये जिसको हम उर्दू में कहते हैं बाज या शाहीन. शाहीन की इमेज जो उर्दू लिटरेचर में है वो एक कलंदर की है, मजहूब की, सूफी की. और इकबाल ने अपनी पोएम्स में शाहीन को इस्तेमाल किया है, फॉर द यूथ, जो कहा कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. तो मैसेज ये दिया है कि ये जो यानी इस तरह का कलंदराना मिजाज होना चाहिए, सेल्फलेस एटीट्यूड, और जब ज़रूरत हो तो एकदम एक्टिव हो जाना चाहिए. तो ये हॉक है. और दो वर्ड्स हमसे पोएम में पूछे गए हैं, मतलब एक्सरसाइजेस में, वो भी नोट कर लीजिए. एक वर्ड है हॉकिश, HAWKISH, हॉकिश. It's an adjective which means hawk-like. Hawk-like मतलब
aggressive person. An aggressive person or a person advocating warlike action. Advocating warlike action. एक और वर्ड पूछा गया है एक्सरसाइजेस में, वह है ईगल आइड. ईगल एक बर्ड होती है, ये भी बर्ड ऑफ प्रे है. EAGLE, ईगल आइड -EYED. ईगल आइड मीन्स शार्प साइटेड. शार्प साइटेड, चील जिसे बोलते हैं. तो और इसे हिंदी में गरुड़ पक्षी भी कहते हैं. तो इसका विजन, आंखें बहुत तेज होती हैं. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड इन द पोएम विच इज प्रोवेस. प्रोवेस भी वर्ड आपको क्वेश्चंस में मिलेगा. PROWESS. प्रोवेस मीन्स वेलर. VALOUR, वेलर. वेलर कहते हैं ब्रेवरी या डेयरिंग, DARING. डेयरिंग मतलब करेज. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सोफिस्ट्री. इसको पोएम के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है, वरना पोएम समझ में नहीं आएगी. देखिए, इसके बहुत सारे माने होते हैं. मैं आपको कुछ मीनिंग्स पढ़ के बताता हूँ, लेकिन जो हमारे नोट करने के मीनिंग हैं वो अलग हैं. पहले नोट करने वाले आप नोट कर लीजिए. इल्यूजन, ILLUSION, illusion. Deception, DECEPTION. या deceit, DECEIT, deceit. एक तो इसका ये मीनिंग होता है, और दूसरे बहुत से मीनिंग इस तरह से होते हैं, जैसे रिफाइनमेंट, इम्प्रूवमेंट, एलिगेंस, डेलिकेसी, नाइसिटी, civility, yes, civilization or civility, politeness, culture, good breeding, fineness, sublimation और gentility. और इसका मीनिंग फॉल्स रीजनिंग भी होता है. फॉल्स और फेलिशियस रीजनिंग. फॉल्स और फेलिशियस रीजनिंग. तो इस तरह से इसके बहुत से माने होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जो हमारी पोएम में अप्लाई होता है वो है इल्यूजन, डिसेप्शन या डिसीट. अच्छा, अब आपका वर्ड प्रोवेस हो गया. जस्ट अ मिनट. Next word is locked. Locked here means gripped. Gripped. That is GRIPPED, gripped. And इसके एक मीनिंग और नोट कर लीजिएगा. वर्ब इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव है. मेक और बिकम
make or become rigidly fixed, rigidly fixed or immovable. तो लॉक्ड जो वर्ड पोएम में आया है, आई रिपीट, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मेक और बिकम रिजिडली फिक्स्ड और इमूवेबल। तो इसके एक वर्ड में अगर मीनिंग समझना हो तो लॉक्ड मीन्स ग्रिप्ड और स्टक, ग्रिप्ड और स्टक। अच्छा, अब एक वर्ड हमें और नोट करना है जो क्वेश्चंस में है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है प्रेडेटरी। PREDATORY, predatory. This means relating to or denoting an animal or animals preying, PREYING, preying naturally upon others, naturally upon others। इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कार्निवरस, CARNIVOROUS, कार्निवरस। और याद रखिएगा, आई रिपीट, CARNIVOROUS, कार्निवरस। प्रे, इसको तोड़ के देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन से ही, PRE, प्रे, डेट, DAT, डेट बोला जाएगा, टोरी, TORY। तो अब इसको प्रे पे स्ट्रेस देंगे, प्रेडेटरी, प्रेडेटरी। तो मिसाल के तौर पे वी हैव प्रेडेटरी बर्ड्स, वो पक्षी जो शिकार करके खाते हैं। So these are almost all the words from the poem. Now you see, what is left is an introduction to the poem. Just a minute, we will read out all the information about the poem and then I'll give you the important points, and last of all I'll explain you the theme. देखिए, टेड ह्यूज के बारे में इन्होंने दिया है। टेड ह्यूज was born in 1930 and died in 1998. Remember, in the mid-80s he was also appointed as the poet laureate or the court poet in England. He completed his education at Pembroke College, Cambridge. In 1956 he married the poet Sylvia Plath. She was an Australian poetess and later she committed suicide. तो जो feminist writers थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक किया टेड ह्यूज पे और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया इसकी डेथ के लिए। Anyway, he tried to make a living in America by teaching and writing. Finally, he returned to England. The most remarkable quality of Hughes's poems is an intense and obsessive fascination with the world of birds and animals. Obsessive कहते हैं overpowering. And though essentially about birds and animals and fishes, his poems shock us with unusual phrases and violent images.
The above poem is in the form of a monologue. तो वॉयलेंट इमेजेस तो हैं इस पोएम में भी, मगर जैसा कि हमने थीम में देखा वॉयलेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले ये मोनोलॉग समझ लीजिए क्या होता है। मोनोलॉग इज द वर्ड यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएट्री रेफरिंग टू स्पीच डिलीवर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। Mono means single, log means speech, monologue. In poetry, we have a regular form called dramatic monologue. जैसे कि सोनेट आपको बताया था, बैलेड बताया, लिरिक बताया। लिरिक जैसे हमने पढ़ा था द पीकॉक, फिर हमने 2 सोनेट्स पढ़े। तो इसी तरह से एक फॉर्म होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे मिसाल के तौर पे ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जैसे हमने अभी वो ब्राउनिंग वर्जन पढ़ा है ना, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज अ 19th century poet and he composed very good dramatic monologues. Some of his poems, you know, some of the very famous poems of by Browning are Last Ride Together, you see, My Last Duchess। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कैसे होते हैं? इसमें एक आदमी बोलता है मगर वो बात अपने बारे में करता है, लेकिन या यूं समझ लें कि बात दूसरों के बारे में करता है। ही टॉक्स अबाउट अदर्स बट रिवील्स हिज ओन पर्सनैलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। एंड अ लिसनर इज सपोज्ड, ये मान के चला जाता है कि इसमें एक लिसनर भी है, हालांकि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। लेकिन हमारी जो पोएम है, इट्स ओनली अ मोनोलॉग बिकॉज इट्स नॉट ड्रामेटिक, बिकॉज देयर इज नो लिसनर सपोज्ड, कोई लिसनर नहीं है। इन आवर पोएम द हॉक इज रूस्टिंग, द बर्ड जो है हॉक वो आराम कर रही है और सोच रहा है हॉक। You know, the hawk is talking to himself, and hawk is personified. It is given the human quality of talking to itself, or thinking, loud thinking। जैसे loud thinking होती है प्ले में, जो प्ले होता है, ड्रामा होता है, जैसे आपने बर्नार्ड शॉ का ड्रामा पढ़ रहे हैं आप, द आर्म्स एंड द मैन। तो और एक प्ले हमने भी पढ़ा है अभी ब्राउनिंग वर्जन, और एक और पढ़ेंगे मदर्स डे। तो एनीवे, अब इसमें प्ले में क्या होता है, लाउड थिंकिंग एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है जब कोई कैरेक्टर स्टेज पे आता है और सोच रहा होता है, जोर जोर से बोलता है, जो भी वो सोच रहा होता है बोल रहा होता है, तो वो थिंकिंग होती है जो वो बोलता है। और यहीं पे आपको एक बात और बता दें, यू नो, देयर इज अ डिवाइस यूज्ड इन द प्लेस कॉल्ड सोलिलोकी, SOLILOQUY। ये लैटिन एक्सप्रेशन है। सॉली मतलब सिंगल, जिसको मोनो कहते हैं, और लॉकी स्पीच, सिंगल स्पीच। तो जब कैरेक्टर स्टेज पे अपीयर करता है और सोच रहा होता है और वो बोलता है जोर से ताकि ऑडियंस को मालूम हो जाए कि वो क्या सोच रहा है, तो उसको सॉलिलोकी कहते हैं। तो ये मोनोलॉग और सॉलिलोकी ऑलमोस्ट एक चीज है, लेकिन मोनोलॉग जो है वो पोइट्री के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और सॉलिलोकी इज यूज्ड मोर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ड्रामा। सो दिस इज अबाउट द फॉर्म ऑफ द पोएम। नाउ you see, as I told you, the bird, that is the hawk, is sitting on a roost and resting and talking to itself। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जो ये बात करता है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट होती हैं। His physical features are highlighted and their significance, and the poet also shows the physical prowess, the physical courage
or daring of the hawk. This is also an important point. And then we'll pay some special attention to some words, phrases, and statements. Uh, and remember, the poem is called Hawk Roosting. वो वजह आपको बताई, because the hawk is sitting on a roost and resting and talking to itself. That is why it's called a hawk roosting. And you know, there is a parallel drawn between the predatory instincts of the bird and human behavior. देखिए, बर्ड्स में बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं उनमें प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स होती हैं. जाहिर बात है वो अटैक करके दूसरे एनिमल्स, स्मॉलर बर्ड्स और इंसेक्ट्स वगैरह को किल करके वो सरवाइव करते हैं. तो यू नो, ये तो उनके लिए ज़रूरी है, बिकॉज इफ दे डोंट किल दे वुडंट बी एबल टू ईट एंड दे वुडंट बी एबल टू सरवाइव. अब ये बात तो सही है, लेकिन बात ये है कि पोएट ने एक पैरेलल ड्रॉ किया है बिटवीन द प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स ऑफ द बर्ड एंड ह्यूमन बिहेवियर. अब आप इंसान के बारे में क्या कहेंगे? What about human beings? Do they always kill in order to survive? No. Most of the times, human beings kill each other or other creatures for different reasons. Sometimes out of revenge, sometimes just to harm. You've got terrorism, for example. हालांकि terrorism से पोएम का कोई ताल्लुक नहीं है. और इसके अलावा भी उनका बिहेवियर जो है वो क्रूअल होता है. यू नो, फैमिली में देख लें, क्रूअल होता है. एज एन ऑफिसर क्रूअल हो जाते हैं. दोज हु आर रिच दे बिकम क्रूअल. यू मस्ट हैव सीन बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स ऑन द डॉग्स फॉर नो रीजन, जस्ट फॉर फन. तो ये बर्ड्स में तो समझ में आता है. इट इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज इफ द बर्ड डजंट किल इट वुड नॉट सर्वाइव. बट ह्यूमन बीइंग्स हु क्लेम टू बी सिविलाइज्ड, हु क्लेम टू बी एजुकेटेड एंड हु हैज द ऑनर ऑफ बीइंग द बेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है. The representative of God on earth, क्रिएटर का खलीफा उसे कहा जाता है, नायब बना के भेजा है, द डेप्यूटी ऑफ गॉड. लेकिन वो क्या कर रहा है? उसके अंदर जो हैवानियत है, यू नो, इन देयर इज एन एनिमैलिटी इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो. तो क्या अब ये द पोएम really forces us to think whether we are really civilized? क्या वाकई हम क्लेम कर सकते हैं कि हम civilized हैं, polite हैं? You know, so it's interesting. अब हम इसके थीम को समझने की कोशिश करते हैं, उससे जो है पोएम का पूरा आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा. We say that the poem is an indirect criticism of human action and human behavior. So वो human action और human behavior को criticize किया जाता है. And the purpose of this poem is not so much to praise the hawk. इसका मतलब poem का मकसद hawk को praise करना नहीं है. फिर क्या है? To denigrate the man, to lower the denigrate मतलब downgrade, lower, criticize the man. The hawk is depicted as being vastly superior to man. You know, the poet shows that the bird is much superior to man. For example, it doesn't have man's devitalizing intellectuality.
एक तो आदमी में ये कमी है कि वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी में खोया रहता है। आपने एक ये फीचर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं और एक्शन का टाइम निकल जाता है। अब इसको आप चाहे पॉलिटिकल सेंस में ले लें, चाहे सोशल सेंस में ले लें, चाहे रिलीजियस सेंस में ले लें। अब जैसे आजकल है, या हमारे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो पॉलिसीज बनाते रहते हैं, कमिटीज बनती हैं, स्टडीज होती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है और सारा जो एक्शन का जो जिस वक्त एक्ट करने का समय होता है वो निकल जाता है। बहुत से एवरीडे लाइफ में भी आपने देखा होगा कि एकदम से कोई काम करने की ज़रूरत हो और हम लोग बहस में उलझे रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लॉजिकल पॉइंट्स देख रहे होते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, जबकि इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत होती है और हम एक्शन नहीं ले पाते। अब जैसे मिसाल के तौर पे गरीबी हटाने का मसला है इन आवर कंट्री। एक बरसों से in early 1970s it was Mrs. Gandhi who gave the slogan, Indira Gandhi, she gave the slogan गरीबी हटाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया। अब 50 साल हो रहे हैं, गरीबी अभी भी नहीं हटी। कितनी पॉलिसीज बन गई, अब वो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, एक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपको इमीडिएट एक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, आपको गरीबी हटाना है तो आप इमीडिएटली गरीबों की मदद करना शुरू कर दीजिए। वो पॉलिसीज बनती रहेंगी, वो इम्प्लीमेंट होता रहेगा, बट दोज हु आर रिच दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट हेल्पिंग द पुअर। तो गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसके घर वाले सोचते रहें कि भाई ऑपरेशन करवाएं ना करवाएं, हो सकता है ऑपरेशन में भी ये मर जाए, हो सकता है बगैर ऑपरेशन के 4 महीने जी जाए, तो ये सोच में इतने में तो पेशेंट मर भी जाएगा। सो यू हैव टू टेक एन स्टेप। आप इसमें द पोएट एस्टैब्लिशेस अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फंक्शनल एनिमल एंड रिफ्लेक्टिव मैन। मैन लैक्स फंक्शनैलिटी। द बर्ड में ये मसला नहीं है, उसको किल करना है तो करना है, इट डजंट थिंक। सो ये जो दिस एक्टिवनेस, दिस फंक्शनैलिटी, मैन लैक्स दिस और कभी कभी ये ओवर फंक्शनल भी हो जाता है। कोई तैश में आ गया, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो अब तैश में आके लोग चाकू भी मार देते हैं। अब ये इसका मतलब ये भी जो है वो एक इनह्यूमन एक्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इट नोज व्हाट इट शुड डू एंड इट डज इट। जहां तक बर्ड की बात है, उसे मालूम है कि उसे क्या करना है और वो कर गुजरता है, हॉक। तो जब हमें भी मालूम है कि हमें क्या करना है, इंसान को इंसान की तरह रहना है, तो उसमें हमें सोचने की क्या जरूरत है। अगर हमें दिख रहा है कोई शख्स है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, अब हम सोचें कि अभी हम इसकी हेल्प करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमें तो फला जगह जाना है, हमें ये करना है। इतने तो सोचते सोचते हम जहाँ जाना है वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे और उसकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो वंस वी नो दैट एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव टू हेल्प अदर्स, वी शुड immediately. There should be no why and how to that. So the bird is functional and the man is reflective. Now let's proceed. But आपके ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई ये तो हॉक तो बहुत ही क्रूअल बर्ड होती है, और ख़ास तौर से जैसा इन्होंने इसमें पोएम में दिखाया है, जैसा कि पोएम द पोएम शोज कि भाई कितनी क्रूअल्टी के साथ हॉक जो है वो अपने विक्टिम को मारता है। तो ऐसा लग सकता है कि हॉक इज ब्रूटल, लेकिन नहीं, हॉक इज नॉट डिपिक्टेड एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्रूटैलिटी। नहीं, क्यों? क्योंकि इट किल्स विदाउट मेलिस in order to survive. It kills other birds without malice. इसमें कोई द्वेष जिसे बोलते हैं, कोई ईर्ष्या, कोई बुरे नियत से नहीं मारता बर्ड को। अगर ना मारे तो ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। देखिए, लॉयन है फॉर एग्जाम्पल, शेर है,
अब शेर से आप कहें कि भाई घास खाओ, मारो मत जानवरों को, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज नेचर ने उसको बनाया ही ऐसा है कि द लॉयन कैनॉट सर्वाइव विदाउट मीट, सिमिलरली हॉक कैनॉट सर्वाइव विदाउट मीट। तो इसके दिल में कोई मैलिस नहीं होता। और यहाँ पे पोएट ने जो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स हैं बर्ड्स की और ह्यूमन बिहेवियर है, उसके बीच में एक पैरेलल ड्रॉ किया है। तो अब उस पैरेलल को समझने की कोशिश करते हैं। 2 लाइन्स हैं पोएम में, वो हम फिर डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि हॉक कहता है, देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, देयर इज नो इल्यूजन, नो डिसेप्शन इन माई बॉडी, यानी आई लुक क्रूअल एंड आई बिहेव इन अ क्रूअल मैनर। वो क्लियरली कह देता है, माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स, आई टेयर हेड्स। इससे इनडायरेक्टली ये सजेशन मिलता है कि ह्यूमन बॉडी में सॉफिस्ट्री है, और ह्यूमन बिहेवियर और में भी है और ह्यूमन एक्शंस में भी है, और वाकई है। ह्यूमन बीइंग्स लुक सो नाइस, सो हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। उनको देख के ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये कोई बहुत ही क्रूअल क्रिएचर है। लेकिन आप हॉक को देखें तो हॉक लुक्स वेरी फियर्स, इट लुक्स फियर्स एंड इट बिहेव्स इन अ फियर्स मैनर। तो कोई धोखा नहीं है, जो वो तो देख के ही आपको लग जाएगा कि ये तो बहुत ही खतरनाक बर्ड है, और वो बिहेव भी वैसे ही करती है। लेकिन इंसान यू नो doesn't seem to be dangerous, at least as far as his body is concerned. Looks to be very nice, handsome, but his cruel and brutal behavior often remains unnoticed. क्यों? Because of his seemingly harmless body and physical refinements. तो बर्ड की जो यानी उसकी जो क्रूअल्टी कह लें, या उसके जो प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट्स हैं, क्रूअल्टी तो नहीं कहना चाहिए, वो तो हम फौरन रिकग्नाइज कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि भाई ये बर्ड तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत बुरी, हम बुरा भी कहने लगते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग्स? ह्यूमन बीइंग्स seem to be harmless, seem to be civilized, but हॉक से ज्यादा क्रूअल तो हम हैं। क्यों? हमारे अंदर इल्यूजन है, डिसेप्शन है। हॉक के अंदर कोई इल्यूजन और डिसेप्शन नहीं है। छोटी छोटी लाइफ में आप मिसालों को ले लें, एक दूसरे को हम कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। उसके मुंह पे तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे उसको हम हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसकी कंप्लेंट्स करना हो ऑफिसर से, या उसको और तरह से नुकसान पहुंचाना हो। जैसे कोई दुकानदार ही है, फॉर एग्जांपल 2 रुपए की चीज़ आपको 40 रुपए की बेच दी, बहुत खुश होता है कि देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया। कोई फल वाला है, वो अपने 1 किलो फल मांगे, वो आपको उसने थोड़ा कम तोल के दे दिया, सोचा कि देखा कितना स्किलफुली मैंने उसको डिसीव कर दिया। सो वी कीप ऑन डिसीविंग ईच अदर, वी हैव इल्यूजन, बट द बर्ड डज नॉट डिसीव। द बर्ड, दैट इज द हॉक, it has a fierce look and it behaves in a fierce manner. Acha, that is why we can say that the human claim of being civilized is based on sophistry, is based on illusion and deception. अब एक बात और समझ लीजिए, जो लास्ट पैराग्राफ में हमने बताई है, वो ये कि कुछ क्रिटिक्स ने, अक्सर आप कमेंट्रीज इसमें पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि भाई द हॉक इज अ सिंबल ऑफ पावर, इज अ सिंबल ऑफ सम डिक्टेटर लाइक हिटलर, जो बिल्कुल क्रूअल है, रूथलेस है और पावर हंग्री है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये व्यू जो है, ये खुद पोएट ने रिजेक्ट कर दिया है। टेड ह्यूज हैज हिमसेल्फ रिजेक्टेड दिस व्यू। पोएट ने खुद कह दिया कि नहीं, ये इंटरप्रिटेशन गलत है। अकॉर्डिंग टू टेड ह्यूज, हॉक रूस्टिंग हैज नथिंग टू डू विद द थीम ऑफ वायलेंस। इसका वायलेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन हिज ओपिनियन,
hawk is a representative of nature as a whole. ये सिर्फ नेचर का रिप्रेजेंट करता है, और हॉक ने, सॉरी, टेड ह्यूज ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम हॉक के, वी ऑफन लुक एट नेचर एज बीइंग वेरी काइंड, मर्सीफुल, and a kind of a companion, but we often overlook the kind of animality or uh, fierceness found in nature. उसको हम इग्नोर कर देते हैं. That is also a part of nature. हम नेचर को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, तो और उसका जो फियर्स एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं. देखिए, वो भी नेचुरल है. बर्ड का किल करना, एक एनिमल को दूसरे एनिमल को मारना, वो भी नेचुरल है. नेचर ने ही वो स्कीम ऑफ थिंग्स बनाई है. वी शुड एक्सेप्ट दैट. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड दैट हैज सेंस. अब देखिए, मिसाल के तौर पे कार्निवरस एनिमल्स हैं. अगर ये ना हो, जैसे शेर कम होते जा रहे हैं हमारे यहाँ, लॉयंस कम होते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है, तो उससे भी इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है. तो ये जो नॉन कार्निवरस एनिमल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. बफेलोज, काउज आपने देखा होगा जगह जगह घूम रही हैं, और इवन ट्राइंग टू, वो ट्राई तो नहीं कहना चाहिए, मतलब उनसे इंसान को नुकसान भी पहुंच रहा है. तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वाइल्ड लाइफ भी ज़रूरी है. दैट इज ऑल्सो नेचुरल, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड वी शुड एक्सेप्ट इट एज इट इज विदाउट really trying to find a reason or justifying or criticizing it. There is no need of criticism. ठीक है, हॉक भी एक क्रिएशन है गॉड का, और उसका भी उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, एक वैल्यू है, in the scheme of things. ये व्यू है पोएम में. तो हम कंक्लूड करते हैं, इट इज फॉर दिस रीजन दैट हॉक रूस्टिंग शुड बी ट्रीटेड एज डिपिक्शन ऑफ नेचर टॉकिंग टू हरसेल्फ. तो ये एक तरह का डिपिक्शन है नेचर का, वेयर नेचर इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, यानी नेचर अपने आप से बातें कर रहा है. द हॉक इज थिंकिंग एंड showing its prowess, its courage, and all that. So, this is a complete introduction to the poem. Now, you see, for our YouTube viewers, I'll try to upload a complete line-by-line analysis of the poem sometimes later, and you can always contact me. I'll add my WhatsApp number for voice notes only in the description to this video. अगर आपके कोई questions हैं तो वो आप मेरे WhatsApp नंबर पे पूछ सकते हैं. बोल के पूछिए, लिख के मत पूछिएगा, टेक्स्ट में मत पूछिए, वॉइस नोट्स में आप पूछ सकते हैं. And as far as my elective English students are concerned, we hopefully will meet tomorrow, and then we'll discuss the poem in our class, our meeting. So, you see, for the time being, that's it. See you next time. Take care in this time of pandemic. Be careful. Take all precautions. Get vaccinated if possible. Try to help each other. You see, we have a terrible scarcity of oxygen. Use oxygen concentrators, and help each other without
distinguishing on the basis of caste or religion etc. आज आजकल हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए धर्म और जाति के भेद को भुला के and as a human being we should fight collectively against this uh, kind of pandemic and so you see the with this message I take your leave. See you next time. Thank you very much.